Hello and welcome to English Foundation Base. And I am Darwin sir. Today we want to discuss and very important topics, future simple tense. There are many students and all our students have a lot of questions how to understand future simple tense. Okay, but today we want to discuss very briefly and very smartly. You will have to understand the concept of future simple tense. Okay, so today we shall addressing an important topic, future simple tense, which is very important for you. Okay, so first of all, now come a question that what is future simple tense. Okay, first of all, a question, what is future simple tense? So let's start. Okay, future simple tense. What is definition of future simple tense? Future simple tense indicates the actions which will occur in the future will shall and be going to our auxiliary verb. Okay, future tense indicates the actions which will occur in the future. That is very important to understand. Now, what? Future tense indicates the action which will occur in the future. What which will occur in the future? So what is the definition? You will have to understand what is concept and what is definition. These are two things very important to you. What is definition? First of all, we will have to command definition of the things you want to study. It's very important to you. Okay, so future tense indicates the action which will occur in the future. And one more thing, will shall and be going. What? There are two things is very important. That will shall be going to or auxiliary verb. Okay, will shall first, after that be going. These are two things is very important to you. To be auxiliary verb. Okay, to or auxiliary verb. Let's clear the definition. Future tense. Future tense indicates the action which will occur in the future, will shall and be going to or auxiliary verb. Okay, so we should understand the concept and definition. Now give me a question that what is identification in Hindi? There is a huge concept for who are students of Hindi. So you will have to understand. I told you when we get at the end of Hindi translation, you should understand what the concept I told you. We get at the end of Hindi translation ga, gi, ge. What? Ga, gi, ge. Okay? We get at the end of Hindi translation ga, gi, ge. It is the concept and identification of future simple tense. Okay, let's start. Now come a question that what verb? We talk about verb. First form of the verb is used in future simple tense. It is more important and very useful concept to you. First form of the verb is used. Okay, and now another question, helping verb. Will and shall. What? Will and shall be used in future simple tense, which is very useful. Okay, let's understand what is the concept of shall and what is the concept of will. Now come a question that where we use shall and where we use will. It is very important. So let's understand. Shall is used with first person to explain any action. Shall is used with the first person to explain any action.
If I want to explain any action, then we use shall. Okay? Will, another concept, another topic, will. Will is used with second person and third person. Okay? Will is used with second person and third person to explain any future action. It is very useful and important concept to you. Okay, what I am telling you is used with the first person to explain an action, and will is used with second person and third person to explain any future action. हिंदी में बात करें तो shall का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं किसी भी एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, किसी भी एक्शन को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वहाँ पे हम shall का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ हम पाते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन लगा हुआ होता है, जब फर्स्ट पर्सन जब हो वहाँ पे हम shall का यूज़ करते हैं. आई मीन आपको आई, जहाँ आपको आई दिखे, ठीक है, आई जब जहाँ पे आप पाते हो वहाँ पे आप shall का प्रयोग कर सकते हैं. इट इज़ द कॉन्सेप्ट. आप इसका स्क्रीनशॉट लें. And now we should understand the concept of shall, which is very important. तो आपने shall को देखा कि shall is used with the first person to explain any action. Okay, you can say that I के साथ हम shall का यूज़ करते हैं. आप एक शब्दों में सीखें तो I के साथ हम shall का प्रयोग करते हैं. ओके, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखेंगे will. Will is used with second person and third person to explain any future action. will का प्रयोग हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं. ओके, will का प्रयोग हम कब करते हैं? आपके पास एक क्वेश्चन जब आता है तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझेंगे कि will का प्रयोग हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं. कब करते हैं? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं. टू एक्सप्लेन एनी फ्यूचर एक्शन को. यदि हमारा कोई फ्यूचर एक्शन है, ठीक है, उसको जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ will का प्रयोग करते हैं. ठीक है, आपको और भी देख लें. इसमें आपको मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ही आसान होगा. आप आई को छोड़ दें, आई के अलावा जितने भी आप सब्जेक्ट पाते हैं, ही, सी, इट, नेम, ओके, यू, देवी, इन सभी के साथ हम will का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, वो मिस्टेक नहीं होगा. अब लेट्स फोकस ऑन structure. It is a very huge concept for you and it is a very important concept to you, and you will have to understand that what is a structure of future simple tense. ये आप इसको बहुत ही अच्छे से आपने इंतज़ार किया रहा होगा कि what is the structure of future simple tense. स्टूडेंट्स, हमारा काम है आपको बेसिक चीज़ आपको पता है, आप बेसिक चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट आई वॉन्ट टू ग्रो यू, और आपको मुझे आगे ले जाना है, आपको बढ़ाना है. तो हम क्या करेंगे, आपकी जो बेसिक चीज़ हैं उसको एडवांस में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको हेल्प होगी. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एनी एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, एसएससी, board examination, you are a student of board examination, and if you want to appear the examination of railway, बैंक, PO, it is very helpful to you. ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे. नाउ कमिंग क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. तो वी फाइंड दैट सब्जेक्ट, will, shall and be were the first form of the verb, okay, and other words. Subject, will, shall. What? First of all, we will have to focus on subject. We will have to put will answer according to subject, and the first form of the verb is used, and now other words. Okay, तो सब्जेक्ट को हम देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार will और shall को लगाएंगे. यदि आई हो तो हम वहाँ पे shall का प्रयोग करेंगे. इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और इसके बाद अदर वर्ड. यदि वहीं पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करें
तो सब्जेक्ट विल सेल के बाद हम नॉट का प्रयोग हर हाल में करेंगे। ओके, सब्जेक्ट, इसके बाद विल सेल और नॉट का प्रयोग हम हर हाल में करेंगे, इसके बाद अदर वर्ड। ओके, अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, विल नॉट को हम शॉर्ट में वांट कहते हैं और सेल नॉट को शैंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि विल नॉट को हम वांट कहते हैं और सेल नॉट को हम शैंट कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ कम ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, ऑक्सिलरी वर्ब से जब हम बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के सबसे पहले हम रखेंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल। तो विल और सेल को हम यहाँ पे रखेंगे। विल सेल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, और हर हाल में इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, वहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय विल नॉट और सेल नॉट, जो विल नॉट और सेल नॉट वांट और सेंट शॉर्ट फॉर्म होते हैं विल नॉट के और सेल नॉट के। तो सबसे पहले आपको वांट और सेंट लगानी है, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, और इसके बाद हर हाल में आपको इंट्रोगेशन मार्क लगानी है। लेट्स टॉक अबाउट WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस हम WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई ये सभी प्रयोग होते हैं। ओके, तो WH वर्ड आफ्टर दैट विल सेल, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और इंट्रोगेशन मार्क। वहीं पे हम जब बात करें WH और नेगेटिव की, तो WH हमारा हो जाएगा, इसके बाद नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर्स ये, इसको हम एज इट इज रख देंगे, वही चीज़ यहाँ पे हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी स्ट्रक्चर्स को याद करनी है। यू विल हैव टू लर्न ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस के आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपके लिए आसान होगा। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे याद करने का कोशिश करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने बात किया कि आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, और जैसे ही आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, वो वाला एग्जांपल सब समझिए। तो सी विल, सी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। मीट यू टुमारो, सी विल मीट यू टुमारो। ओके, उसका निगेटिव हम बनाएंगे, तो सी विल नॉट मीट यू टुमारो। ठीक है, सी विल नॉट मीट यू टुमारो। इंट्रोगेटिव पे ध्यान दें, तो विल को हम पहले रख लिए और सी को बाद में, तो विल सी मीट यू टुमारो, विल सी मीट यू टुमारो। ठीक है, इस प्रकार इसका यदि हम निगेटिव बनाएं इंट्रोगेटिव के साथ, तो विल नॉट सी मीट यू टुमारो। ओके, WH वर्ड के साथ देखेंगे तो वाई विल सी मीट यू टुमारो एंड वाई वॉन्ट सी मीट यू टुमारो। एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें, किसी भी सेंटेंस को आप 6 तरीके से बना सकते हो। और आपसे बात करें कि शैल का प्रयोग में, तो आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अदर वर्ड, तो हो जाएगा आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले हॉकी। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाने का कोशिश करें। यदि आपको दिक्कत जाती है, कहीं पे भी समस्याएं होती हैं, तो देन यू विल कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, और मैं आपको वहाँ पे चीज़ों को बताने का कोशिश करूँगा। यदि आपको और इसको एक्सप्लेन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इन एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ कि आपको बहुत ब्रीफली बताने का, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अब आपसे मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।